آغاز میں خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کرپشن کے دونوں کیسز میں بری ہو گئے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اب انہیں تیسرے مقدمے میں گرفتار کر دیا ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی، جن کی گرفتاری، بریت اور پھر گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، پہلے انہیں لاہور کی عدالت نے بری کیا، جس کے بعد انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن کے گجرانوالہ میں درج مقدمات میں آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں بھی انہیں بری کر دیا گیا۔ اب ایک اور مقدمے میں چودھری پرویز الہی کی تیسری بار گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ رانا وحید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ رانا وحید، کہیے گا کتنے مقدمات ہیں چودھری پرویز الہی کے خلاف؟ جی بالکل، چودھری پرویز الہی کو تیسری بار اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن نے تیسری بار وہ گرفتار کیا ہے۔ اس بار جو ان پہ گرفتاری ڈالی ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو بھرتیاں کی گئی تھی اس میں ان پہ الزام ہے کہ ریکارڈ میں رد و بدل کر کے گریڈ 8 سے لے کر 17 تک انہوں نے بھرتیاں کی تھی، جس میں سیکرٹری اسمبلی رائے ممتاز بابر، ان کو بھی اینٹی کرپشن نے ابھی کچھ دیر پہلے گرفتار کیا ہے۔ حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں تیسری بار چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب چونکہ ان کو گجرانوالہ کے 2 مقدمات میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، آج بھی جو وہاں کے عدالت کی جانب سے اب تیسری بار اینٹی کرپشن نے ایک نیا مقدمہ سامنے آیا ہے، جس میں پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ رانا وحید، آپ کا بہت شکریہ۔ گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن عدالت میں چودھری پرویز الہی کے خلاف کرپشن کے الزامات میں درج 2 مقدمات کی سماعت۔ سینئر سول جج نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا، اس کیس کی انکوائری کس نے کی؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے کیس کی انکوائری کی ہے۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ اس کیس کی انکوائری ڈی جی اینٹی کرپشن کر سکتا ہے، ڈیپٹی ڈائریکٹر نہیں۔ اسی کیس میں میجسٹریٹ پہلے ہی فرنٹ مین کو بری کر چکا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا چودھری پرویز الہی کو 2 مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مقدمات کی تفتیش اور رشوت کی رقم برآمد کرنے کے لیے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی عدالت میں دوران سماعت کسی سے فون پر باتیں کرتے رہے۔ صحافیوں نے عدالت آمد پر چودھری پرویز الہی سے سوال کیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رات کہاں میں تھے؟ جہاں یہ رکھتے ہوتے ہیں حوالات میں تھے۔ ہاں جی، رات کو حوالات میں دوائیاں تک نہیں دی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جناح ہاؤس حملہ کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر یاسمین راشد کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کیس کی سماعت۔ پولیس نے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت میں پیش کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پولیس کی جانب سے ادا کی گئی۔ عدالت نے پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالتی حکم پر پولیس نے 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمہ نمبر 9623 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام خارج کر دیا۔ یاد رہے کہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو سروسز اسپتال سے گرفتار کیا تھا۔ کرپٹ آدمی کے لیے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہمت تو کبھی دشمن نے بھی نہیں کی۔ یقین دلاتا ہوں کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قانونی اور داخلہ امور عطا تارڑ کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا شرپسندوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ واقعات اس ملک کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا سازش ہے کہ انڈیا آج تک یا دشمن ممالک آج تک جو جرت نہیں کر سکے، وہ ایک کرپشن کیس کے پیچھے آپ کے پیروکاروں نے کر دی۔ جھوٹ سنا کے اتنا گونگا بہرا اور اندھا کر دیا گیا تھا۔ جب ملک کی سالمیت پہ کسی کے افسانے پر آپ حملہ کرتے ہیں، اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ دہشت گردی کے واقعات کریں اور بعد میں کہیں ہم خواتین ہیں، ہمیں یہ سلوک نہ کیا جائے، سوشل میڈیا کے پرچے کریں۔ بھئی اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کی بورڈ پہ یہ کاروائی کی ہوتی، سوشل میڈیا کے پرچے دے دیتے۔ آپ چل کے گئے ہیں، آپ نے حملہ کیا ہے تو اس کے تو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کریں، ان کے خلاف بھی ایکشن بالکل لیا جائے گا، بلا امتیاز لیا جائے گا۔
9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हुई है। पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंकने वाला मियां आतिफ महमूद कुरैशी निकला, जो PTI रावलपिंडी का नायब सदर है। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना का सुराग लगा लिया गया। शरपसंद सरगना मियां आतिफ महमूद कुरैशी निकला, जो PTI रावलपिंडी का नायब सदर है। शरपसंद मियां आतिफ महमूद ने GHQ हमले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीडियो में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह उसने मौके पर पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। यही नहीं, मियां आतिफ महमूद ने रियासत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। फौजी अमलाक खुसूसन GHQ पर हमला और फौज मुखालिफ नारेबाजी पर मियां आतिफ महमूद के खिलाफ कानून का घेरा तंग कर दिया गया है। और दूसरी जानिब लाहौर जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रहायशगाह पर इस्लामाबाद पुलिस की आमद। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस जज धमकी केस में समन की तामील के लिए पहुंची। पुलिस ने जज धमकी केस में समन की तामील कराई है। तो आपको बताएं कि लाहौर जमान पार्क में चेयरमैन PTI की रहायशगाह पर इस्लामाबाद पुलिस की आमद। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस जज धमकी केस में समन की तामील के लिए पहुंची थी और पुलिस ने जज धमकी केस में समन की तामील कराई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान खान ने कौमी ख़जाने पर डाका डाला। शहबाज शरीफ ने मीसाक़ मईशत का कहा तो हमें चोर डाकू कहा गया। नून लीग की सारी क़यादत को जेलों में डाला गया। अब जो कुछ हो रहा है ये मकाफ़ात अमल है। आइन को रीराइट करना और ये काम करना और गुड टू सी यू कहना, ये मैं हमेशा कहता रहूँगा। मैंने नहीं कहा कि आपने अपना फला किया, मैंने कहा आपने आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की किसी की मोहब्बत और प्यार में। ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती। जब भी अपना जो है ना मुल्क को मुश्किल वक्त आया, हम मज़ाकरात के लिए आते थे, इमरान न्याई साहब मजाक उड़ाते थे। न्याई साहब ये मुकाफ़ात अमल है। मज़ाकरात जो है ना सियासी कोतों के साथ किया जाता है, इंतशार फैलाने वालों के साथ मज़ाकरात नहीं होते। अब आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक अरकान असम्बली का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास इस सिलसिले में मुतहरिक हो गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने साबिक अरकान असम्बली से अपने राब्ते तेज़ किए हैं। हाशिम डोगर ये कहते हैं कि एक बड़ा ग्रुप इकट्ठे चलने का ऐलान बहुत जल्द करेगा। कभी भी नून लीग और PDM के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। PTI और उसके वर्कर बेयारो मददगार नहीं हो सकते। देखेंगे कि सियासत किस करवट बैठेगी। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान की अक्सरियत ने ऐवान में वापसी और पार्टी से इजहार लाताल्लुक़ी का ऐलान करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से रब्ता कर लिया है। मुस्ताफ़ी अरकान के ग्रुप के सरबराह रियाज फतियाना ने स्पीकर को ख़त भी लिख दिया है। ख़त में कहा गया कि ऐवान में वापस आकर मिलकर साथ चलने को तैयार हैं। अरकान ने यकीन दहानी करवाई कि किसी भी किस्म की कानून साजी में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने कानूनी माहिरीन से इस सिलसिले में राय मांग ली है। और चेयरमैन PTI का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। करप्शन का फंदा चेयरमैन PTI के गिर्द तंग होता जा रहा है। लाडले को बचाने वाले भी अब नहीं बचा सकेंगे। सिंध के वजीर शर्जील नाम मेमन का कहना है कि चेयरमैन PTI रियासत को धमकी दे रहा है। इसको मजीद रियायत देना कौम के साथ जाती है। इमरान खान का BBC में इंटरव्यू कोई देख ले तो मैं समझता हूं कि अब इमरान खान खुद भी चाहें और उस लाडले को बचाने वाले जो हमेशा कूद पड़ते हैं लाडले को बचाने के लिए, वो भी चाहें तो अब इमरान खान का कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इससे पहले इमरान खान की हमेशा सियासत ये रही है, जमान पार्क में हो या बन्नी गाला में मर्जी के जर्नलिस्ट को बुलाना, उनको इंटरव्यू देना। डेरा इस्माइल खान से साबिक MP एहतशाम जावेद अकबर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारी इमलाक और शुहदा की यादगारों को जलाया गया। इन कार्रवाइयों में मुलव्वस तमाम अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह हमारे अमलाक का, जिस तरह हमारे एसेट्स का नुकसान हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह उनको जलाया गया है, हमारे शुहदा की जो बेहुरमती हुई है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा मुल्क सलामत है, पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से, हमारे शुहदा की कुर्बानियों की वजह से हमारा मुल्क आज सलामत है। तो मैंने ये फ़ैसला किया, कोई आसान फ़ैसला नहीं था,
शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर लूँ। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूस इरफान कादिर कहते हैं कि चंद मखसूस लोग रियासती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। लगता है ये लोग किसी ख़ास सियासी ग्रुप के लिए नरम गोशा रखते हैं। तमाम इदारों ने अपनी हदूद क़यूद में काम करना है। रियासत, वफाकी और सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और असम्बलियों का नाम है। दौरान समात मुतनाज़ सवालात नहीं पूछे जा सकते। कानून साजी पार्लिमान का इस्तेहकाक है, इसका अदलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। तमाम लोग खा वो इक़्तिदार में हैं, खा वो इक़्तिदार से बाहर हैं, खा वो पाकिस्तान के शहरी हैं, सबसे जो फॉरमोस्ट ड्यूटी है, सबसे जो पहली ड्यूटी है उनकी, वो है कि आपने लॉयल रहना है, आपने वफादार रहना है रियासत का। और उसके बाद फिर तमाम जो अदारे हैं उन्होंने अपने हदूद और क़यूद में काम करना है। रियासत पार्लिमान है, सूबाई हुकूमत है, और सूबाई असम्बलियाँ वो भी इसी के अंदर रियासत में आती हैं। तो मुख्तलिफ अहम मुकदमात की समाअत के दौरान ये सवाल अक्सर किया जाता है कि हुकूमत क्या कर रही है। आगे ये भी सवाल किया जाता है कि कानून साजी में हमसे पहले मुशावरत क्यों नहीं कर ली जाती। तो शुरू में मैंने वजाहत कर दी थी कि रियासत क्या है, तो रियासत का सबसे जो पहला अहम जुज़्व है वो हुकूमत है, और पूरी रियासत को वो समझते हैं कि वो उनके जवाब दिया है, जबकि आइन में लिखा हुआ है इन सब की जो फॉरमोस्ट लॉयल्टी है वो रियासत को है। पार्लिमान या हुकूमत ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में चंद मखसूस जज साहिबान नज़र आएँ कि वो आइनी हदूद या कानूनी हदूद और क़यूद को पामाल कर रहे हैं या उनकी वायलेट कर रहे हैं, उसके अंदर नहीं रह रहे, तो बिल्कुल उनका भी जिक्र किया जा सकता है। कानून से तो कोई बड़ा नहीं है, ये जो आइन से भी कोई बड़ा नहीं है। इस तरह का ज़ोम होना, ख्याल होना कि आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं, तो ये सोच जो है ये गैर आइनी सोच है, ये आइन के मुनाफी सोच है। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। महंगाई की वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की तारीखें देने वालों को अलबत्ता शर्म आनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि मसाइल से निपटने के लिए वक्त दरकार है। साबिक़ा हुकूमत ने IMF के साथ वादे पूरे नहीं किए। हमारी कोशिश है कि बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर हों। ये भी कहा कि स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में इंशाल्लाह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, पाकिस्तान में इंशाल्लाह सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा, पाकिस्तान में वो चीज़ें होंगी कि जो पाकिस्तान रियली डिजर्व करता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम किधर जा रहे थे, 24वीं मईशत बन गए, G20 में प्रेडिक्शन हो गई, प्राइस वाटर कूपर्स की रिपोर्ट आज भी मौजूद है। जब गैस बढ़ाएंगे, बिजली बढ़ाएंगे, फिस्कल रिफॉर्म्स करेंगे, रिफॉर्म्स आर नेवर इजी, दे आर ऑलवेज पेनफुल एंड डिफिकल्ट। मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं है अगर पॉलिटिकल लॉस किया भी है तो, लेकिन कौम को डिफॉल्ट से बचा लिया, कौम को जैसे प्रोडिक्शन जी श्रीलंका बन जाएगा, हम इस मुल्क को वापस ना सिर्फ 24वीं मईशत में लेके जाएंगे बल्कि पार्ट ऑफ G20 एक दिन बनेगा ये मुल्क। इट विल बी एशियन टाइगर, सो वी हैव टू वर्क टुगेदर। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें 8 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस बाहिर अली लखवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी थी। गुज़श्ता समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी कानून में कुछ शेखें एक जैसी हैं। दोनों कवानीन को बाहमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं, पार्लियामेंट को मामला भेजने से लगेगा, इस पर फैसला कर दिया। आपकी इस तजवीज़ का खैर मकबूल करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि सदर ममलिकत ने फैसलों के नजरसानी कानून पर दस्तखत कर दिए। अदालती हुक्म के मुताबिक मौजूदा केस भी 184(3) के तहत ही दायर हुआ था। कानून का इतलाक मौजूदा केस पर भी होता है, इसलिए अटॉर्नी जनरल नए कानून की कॉपियाँ फ़रीक़ैन को फराहम करें। फ़रीक़ैन मुनासिब समझें तो आइंदा समाअत पर इस हवाले से दलाइल दे सकते हैं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी।